Good morning, students. Today we will discuss about the dispersion of the light through the glass prism. So here we are going to start. Dispersion of the light whenever if we have prism. But first of all, we will discuss little bit about the prism. What is a prism? Prism is a transparent material. ट्रायंगुलर शेप में होता है इसकी फेसेस आर द ट्रायंगुलर बट सम रिफ्रैक्टिव सरफेसेस आर रेक्टेंगुलर आल्सो ठीक है नीचे का बेस आपका रेक्टेंगुलर होगा यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा जो कि रेक्टेंगुलर है और इनका फेसेस जो होंगे वो ट्रायंगुलर होंगे सो दिस इज योर प्रिज्म ओके सो व्हेन एनी इंसिडेंट रे फॉल ऑन इट अगर कोई भी इंसिडेंट रे जाएगी सो ऑब्वियसली that incident this is your incident ray and we are going from the air to the glass हम क्या करें from the air to the glass that means we are going from rare medium to the denser medium so what will happen here light will bend towards the normal so first of all we will draw a normal then light will bend towards the normal okay this will be the actual part but since we are going from one medium to another, so light will bend towards the normal. Then again we have another refracting surface here. So again now we are going from the denser medium to the rarer medium. From the denser medium to the rarer medium. So we move away from the normal. So this is your normal. So light will bend away from the normal. So this will be the procedure how this is your incident ray, this is your refracted ray and this is your emergent ray as you had studied in the glass lab. Similarly, this is your ray, this is your refracted ray and this is your emergent ray. Now if we will extend it in इस तरीके से हम अगर if we will extend it so this much we have the deviation in the path of the light. So this should be the actual path. ये होना चाहिए था आपका इंसिडेंट रे का पाथ दिस शुड बी द पाथ ऑफ दिस लाइट सो हाउ मच इज द डेविएशन दिस इज नोन एज एंगल ऑफ द डेविएशन एंड रिप्रेजेंट बाय डेल्टा दिस इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर डेल्टा डेल्टा बोलते हैं इसे तो कितना हमारा इनिशियली ये इसका डेविएशन हुआ है इसके एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुआ है डेल्टा एंगल सो दिस एंगल विल बी डेल्टा इफ दिस इज योर एंगल ऑफ द प्रिज्म if this is your a this is your b this is your c a is the angle of the prism a is called the angle of the prism now this is your incident ray and incident ray make the angle with the normal is known as इंसिडेंट एंगल और ये होता है आपका जो रिफ्लेक्टेड ये इमर्जेंट रेज में जो आपका नॉर्मल के साथ एंगल बना है दैट इज योर ई इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं डेल्टा सो फॉर द प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म plus deviated angle is equal to incident angle plus angle of emergence. This is the property of the prism. ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है डिटेल लर्निंग नहीं है बट सिर्फ अपना हमारे कोर्स में इतना है ये आपका प्रैक्टिकल होता था व्हेन वी हैव द नॉर्मल क्लासेस सो एंगल ऑफ द प्रिज्म प्लस डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन डेविएशन मींस एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई आपकी लाइट so this is your angle of the prism plus angle of deviation is equal to incident angle plus angle of emergence ये पढ़ना है आपको बस ठीक है इतना आप लोग पढ़ेंगे now is there any problem till here no. So now we have dispersion of the white light ठीक है dispersion of the white light we all know in your previous classes you had studied about the white light is the mixture of 7 constituent color and we for learning the pattern we have studied about the meteor so what will happen here
I think in my previous class, not in previous class, in the previous chapter, I had explained you the wavelength as well as velocity for each and every color will be different from each other. Only there is the difference. Which thing will remain same? Frequency. Frequency remains same. Other two things, velocity as well as the wavelength will be different from each other. So what will the procedure of the scattering of the light, or we can say dispersion of the white light through the prism? So what will be our figure here? So because of the different wavelengths, what will happen here? Whenever a beam of light falls on the prism, if this is your white light का मतलब है आपका sunlight. This is your white light. अगर white light आपके prism में पड़ी, what will happen? First of all, this is your normal. So light will bend towards the normal. Light will bend towards the normal. Then again we have, then it will disperse into its constituent colors. तो जब आप कभी white light प्रिज्म में पड़ती है तो क्या होता है, वो अपने 7 कलर्स में सेग्रीगेट हो जाती है. तो क्या होता है, we have the bend of, we have the, ठीक है, इस तरीके से we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this will be your red and this will be your violet, indigo, blue, green, yellow and orange and red. Vibgyor, this will be the pattern. तो सबसे पहले आपकी लाइट कौन से कलर की डेविएट हुई? रेड. और सबसे बाद में हमारी कौन से कलर की डेविएट? वायलेट. The speed of red color is maximum. The speed of red color is maximum. VR is maximum and velocity speed of violet is minimum. और बीच में इनकी अलग अलग होती है. Whenever this time you all know that we have the case study also. ठीक है, केस स्टडी आती है तो उसमें क्या होता है, स्टेंजा, यू हैव द स्टेंजा, यू हैव टू गिव द आंसर बाय रीडिंग द स्टेंजा. इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे आपके स्टेंजा के अंदर आंसर होंगे कि राम बाजार जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एग्जैक्ट आंसर उसमें होगा. दैट मीन्स यू हैव टू थोरोली स्टडी आपके होनी चाहिए. जैसे इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ डायग्राम, मान लीजिए उसमें रेड और वॉयलेट है ही नहीं, उसमें आपके बीच के कोई भी 2 कलर दे दिए, उन्होंने येलो दे दिया और ब्लू दे दिया, फिर वो आपसे पूछेंगे कि कौन से की स्पीड ज्यादा होगी, कौन से की कम होगी. अगर ये पैटर्न है हमने दो, तो फिर आपको पूरी पता होना चाहिए प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर. सो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी स्पीड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. स्पीड क्या हो रही है आपकी, कम होती जा रही है. दैट वाज द रेड कलर इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ द वॉयलेट कलर इज मिनिमम. अब क्या हुआ, आपका सबसे कम डेविएट कौन हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से? रेड कलर. और सबसे ज्यादा कौन सा डेविएट हुआ है? वायलेट कलर. व्हेन आई हैड एक्सप्लेन यू अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इन माय प्रीवियस चैप्टर, आपको हमने एक रिलेशन बताया था दैट n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. दैट मींस velocity and refractive indices are inversely proportional to each other. जिस कलर का स्पीड ज्यादा होगी, the refractive index of that particular color is minimum. If the velocity is maximum for a particular color, then the refractive index of that particular color is minimum. That means refractive index of R is minimum as compared to that of the violet. तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से का होगा? रेड कलर का. और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वॉयलेट कलर. दैट्स व्हाई दिस, इसका डेविएशन कम हुआ है और इसका डेविएशन आपसे सब क्या हुआ है? सबसे ज्यादा. उसके साथ हमारा एक रिलेशन और था
we have this is equal to lambda 1 upon lambda 2, where lambda are the wavelengths of the particular color. मतलब कि जिस कलर की स्पीड ज्यादा है उसी कलर का वेवलेंथ भी मैक्सिमम होगा. That means for the violet red color speed is maximum. That means wavelength of the red color is maximum as compared to the wavelength of the violet color. ठीक है. अब हम इसे याद कैसे करेंगे? सिर्फ एक चीज याद कर लेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. एक बार ये फॉर्मूला तो आपको याद ही करना है. इसके साथ एक चीज और बताई थी हमने, साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है. हमें ये फॉर्मूला याद करना ही करना है क्योंकि वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला. सो इन दिस फॉर्मूला एक चीज आप याद कर लेंगे कि स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम. सिर्फ ये याद करेंगे आप. क्या याद करना है हमें कि स्पीड रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है. ये याद कर लिया आपने. अब अगर जो रेड कलर की होगी उसका बिल्कुल अपोजिट किसका होगा? वायलेट कलर. तो इफ द स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम दैट मींस स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम. उसके बाद इफ द स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम that means refractive index of red color will be minimum और इसका violet color का क्या हो जाएगा? maximum. Then we are coming to the wavelength. तो wavelength भी red color की होगी आपकी ज्यादा क्योंकि directly proportional है. फॉर्मूले से ही पता चल रहा है. जिसमें 1 लिखा है तो directly proportional है. If you have in the numerator 2 that means inversely proportional है. तो ये दोनों बढ़ेंगे और ये कम होगा. So this will be the, तो ये तीनों इनका रिलेशन है. What? Anyone want to ask anything? अगर ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है then you can ask. Any problem? Okay. If you have any problem, you can use your chat box also. I will look at here. Okay. So this is the procedure. So this pattern of this scattering of the white light into its constituent colors. जो आपका white light क्या हुई? अपने constituent colors में टूट गई. That is known as dispersion of the light. और जो हमने screen पे pattern obtain किया है, that is known as spectrum of the white light. ठीक है? Clear समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या है? If we will place अनदर एक और हम यहाँ पे हम क्या कर ले? दूसरा इनवर्ट हम क्या रख ले? प्रिज्म रख ले. देन व्हाट विल हैपन हियर? This is our prism. White light. Then it divides into its color. बहुत पास आपको ड्रॉ करने हैं. One more thing I want to explain you. You have seen the rainbow. Rainbow देखा है ना आप लोगों ने? तो I hope you have not seen 7 colors in it. 7 colors तो हमें लगता नहीं, हमें लगता है 3-4 कलर हमें लगता है. Because violet, indigo, blue और are blue in color. तो blue के ही shades है ये. तो we cannot distinguish क्योंकि wavelengths में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है. तो इस तरीके से हमें लगता है कि एक ही कलर लगता है या फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं. बट वी हैव 7 कलर्स. अगर इसमें से एक भी कलर कम हो गया दैट मीन्स इट विल नॉट बी अ व्हाइट लाइट. तो वो व्हाइट लाइट नहीं होगी. अब क्या है, हमने यहाँ पर एक और प्रिज्म लगा दिया, इनवर्टेड प्रिज्म. ठीक है. सॉरी ये रखना चाहिए था हमको. So this will be your another prism. Then अब क्या होगा? We are going from the rare medium to the denser medium. तो क्या होगा? कंबाइन वेवलेट. हाँ, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी. ये इस तरीके से थोड़ा बड़ा बनाना. ओके. एक पॉइंट में इकट्ठी हो जाएंगी सारी लाइट्स और मैं व्हाइट लाइट में और यहाँ पे मुझे रख देना व्हाइट लाइट.
तो इसमें you have the figure in your question, you have the figure, maybe you have different figures आएंगे। कई बार इसमें इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे बाहर 7 कलर दिखाएंगे, कई बार ऊपर 7 कलर दिखाएंगे और व्हाइट लाइट दिखाएंगे। आपको बताना होगा which one will be the correct answer। तो आपको हर चीज डिटेल में पता होनी चाहिए कि अगर हमने एक प्रिज्म से ये डाला, फिर अगर इसमें बाई चांस यू हैव द 3 प्रिज्म, तो तुम्हारे को दोबारा से 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सारा पता होना चाहिए डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट। अब हाउ वी विल कम टू नो दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। तो इसके लिए न्यूटन मेड अ डिस्क दैट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। न्यूटन डिस्क बनाई थी उन्होंने। हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, यू कैन प्रिपेयर इट एट योर होम्स ऑल्सो। हमने क्या करना है, अच्छा पहले आप बताइए, आपने कभी सीडी देखी होगी? सीडी, तो शाइनी सरफेस ऑफ द सीडी, जो शाइनी सरफेस होता है उसमें आपको कलर्स दिखते हैं जो कि रेनबो में दिखते हैं आपको, ठीक है। हाउ, तो न्यूटन ने क्या करा, यू कैन टेक अ कार्डबोर्ड, आप ये क्या लेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे, उसको काटेंगे। हाँ, यू कैन मेक अ सर्कल ऑन द कार्डबोर्ड, उसको काट लोगे, देन यू विल उसमें क्या कर देंगे, व्हाइट कलर, या फिर आप व्हाइट शीट उसमें पेस्ट कर देंगे, दोनों तरफ से आप व्हाइट शीट पेस्ट कर देंगे। देन यू विल डिवाइड दिस सर्कल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, दिस सर्कल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। यू ऑल नो 360 का एंगल होता है, तो आप इसको यहाँ पे से एंगल्स बनाना शुरू करोगे एंड डिवाइड इनटू 7 पार्ट्स, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट्स हैं आपको। हाँ, नो प्रॉब्लम, माइन्यूट पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। सो किसी में एक पॉइंट आगे कर लेना, किसी में एक पॉइंट पीछे कर लेना। सो 7 इक्वल पार्ट्स में यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद क्या करना है आपको, कलर करने हैं आपको इन अ पैटर्न। इसको जैसे एक इसको वायलेट कर लिया, इंडिगो कर दिया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, कलर इट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बीच में एक होल करना है और जैसे किसी चीज से इस तरीके से उसमें पिन करनी है कि जैसे कि आप जैसे लट्टू घुमाते हैं, दैट यू हैव टू स्पिन इट वेल। आपको किसी या कंपास में डाल लीजिए और इसको बहुत तेजी से हाथ से घुमा के देखिए, यू विल ऑब्टेन ओनली व्हाइट कलर। आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा। इफ द स्पिनिंग इज व्हाइट, then you will only look at one single color, that color will be white. So Newton made this disc for showing that white light is the mixture of these 7 colors. So Newton ने disc बनाई थी। The name of the new disc is the name of the Newton. That's why its name is Newton's disc. Clear till here? Any problem? Clear? Any problem? Then we, huh? Prism is triangular in shape. Triangular होता है या rectangular surface होता है। I will show you. Don't worry. मैं next period में किसी दिन आपका लाके दिखा दूंगी और I will. बस एक केस में ऐसे लग रहा था, व्हाइट लाइट जो हमने पास करवा दी, तो मतलब केस में अगर हम उल्टे के काम सीधा रखेंगे तो लाइट और भी निकल सकती है क्या? Now it depends on the angle. Look at here now. What we have the another topic, that is नहीं बनेगी। Now we have some type of light that is monochromatic and polychromatic. मोनो वर्ड इज मेंट फॉर द वन। पता है आप लोगों को, जैसे मोनोमियल पढ़ते थे आप लोग, पॉलिनोमियल पढ़ते थे। मोनो मीन्स 1 होता था और पॉली मीन्स मोर होता था। So if we have numbers of light, that light is known as polychromatic. If we have light of only one single color, that light is known as monochromatic. So monochromatic के लिए we can take the sodium light.
सोडियम लाइट को हम ले सकते हैं, दैट इज येलो इन कलर। ठीक है, सोडियम लाइट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमेटिक। और पॉलीक्रोमेटिक का तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, व्हाइट लाइट, sunlight. White light means we are talking about the sunlight. So monochromatic and polychromatic, these two type of lights we have. So velocity of which color is maximum? Then after that we have the how we can see the rainbow. कैसे हमें रेनबो दिखाई देता है? How we all know that we have the, जब आपकी बारिश हो जाती है, then we have the drops of the water on the in the air. Air में हमारी क्या होगी? बहुत सारी drops of water, and each drop will behave like a prism, like a short prism. So now we can see the rainbow only if we after the heavy rain. After the heavy rain, when sun will come, then only we can see the rainbow. ऐसा नहीं होता है कि हल्की सी बारिश हुई और आपको रेनबो दिखना शुरू हो गया एकदम से। बारिश खत्म होने के बाद भी रेनबो दिखता है? हाँ, बारिश के बाद ही दिखता है, बारिश के साथ नहीं दिखता है। जब बारिश या फिर कभी हल्की बारिश हो रही है और धूप आ गई तब दिखता है, वो भी आफ्टर हैवी रेन, बिकॉज at that time sky is clear. Sky is clear and there is not any bigger particles in the air. Like an example, we have smoke and dust particles. These all are पहले ही हमारे पास आ चुके हैं, वो विद द वाटर नीचे आ जाते हैं। वो उस समय आपके डस्ट पार्टिकल एंड ऑल आर not in the air, तो उस समय we have only water droplets and each drop will behave like a short prism. तो क्या होता है, white light यहाँ पे से आपको हल्की सी आ रहे हैं। Coming to the topic, then this is your one medium. We are coming to the next medium. Then we have the internal reflection in this side, this one, and then this white light divided into its seven colors. So we can see the rainbow. ये अंदर ही अंदर पहले internal reflection होता है। उसके आगे अपन एक और बूंद आ गई तो पानी। If we are going from the denser to the rarer medium, we have incident light here, and this is your, now it will bend towards the normal. So for the general, whenever we are going from the denser to the rarer, always I is less than R. हमेशा I छोटा होता है और R बड़ा होता है if we are going from the denser to the rarer. पता है ये आप लोगों को। अब अगर हमने I को बढ़ाना शुरू कर दिया तो R भी बढ़ेगा, एंड सिंस I is less than R, तो पहले कोई भी चीज किसी भी पहले कौन सा ज्यादा 90 हो जाएगा, पहले R 90 हो जाएगा, उसके बाद I 90 होगा। So if we have the another condition, अगर हम I को बढ़ाते जाते हैं तो R भी बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी for which angle of refraction is equal to this one, 90 degrees. At that time incident angle is known as critical angle, और इस कंडीशन को हम बोलते थे ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस, क्योंकि आपका जो ये surface of the slab as well as the refracted ray both are same, grazing emergence बोलते हैं। So the what will be the definition for the critical angle? The definition of the critical angle is incident angle for which, if we are going from the denser medium to the rarer medium, so incident angle for which angle of refraction is 90 degree, that incident angle is known as critical angle. इसके बाद अगर critical angle होने के बाद भी हम angle of incident को बढ़ाते जा रहे हैं तो अब ये 90 से भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये 90 से ज्यादा हो जाएगा तो इससे अब अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब ये बाहर नहीं आएगी आपकी लाइट रे,
अब ये आपकी लाइट रे अंदर से अंदर ही चली जाएगी, और अगर कभी लाइट रे अंदर से अंदर जाती है, दैट मीन्स वी हैव द सेम मीडियम, and in the same medium we have the reflection, not the refraction. This condition is known as total internal reflection, और ये सिर्फ तभी होगा जब we are going from the denser to the rarer, और इसकी कंडीशन है कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो यानी कि, और ये कब कब होता है, एक तो जब आपकी छोटी वाटर ड्रॉप्स होती है जो आपकी एक्ट लाइक द प्रिज्म, उस समय आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, और जो आपका बहुत ज्यादा चमकदार शाइनी होता है दैट इज योर डायमंड। तो डायमंड में भी हमारे को ये कंडीशन आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, दो और भी होंगे बट आप ये दो याद कर लीजिए कि एक तो जब आपकी जो यहाँ पे हमारी तो ये जो आपकी थी, वी हैव दिस ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें आपकी एक इंसिडेंट रे आई, देन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, देन वी हैव इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, आफ्टर दैट इट डिवाइड्स इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। तो हमारे को क्या दिख गया, रेनबो दिख गया। ठीक है, उसके बाद हमारी ये क्लियर टू ऑल दिस टॉपिक।